الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اس پوری آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہم آج کی اس مجلس کے اندر سیکھیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک مکہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر مسلمان رہتے ہوئے بہت ساری تکالیف برداشت کر رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، وہاں ان کے ساتھ ہر وہ حربہ اختیار کیا جو ممکنہ تھا تاکہ یہ لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، اور مسلمان ان کے مصائب اور ان کی تکالیف سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو وہاں حکم کیا تھا؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن 13 سالہ زندگی مکہ کی گزار کر جب حکم ہوا کہ ہجرت کرو، ہجرت کر کے دوسری دفعہ مدینہ طیبہ پہنچے، پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر دوسری دفعہ مدینہ طیبہ کی طرف پہنچے، تو وہاں جب رہنے لگے تو وہاں حکم دیا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، اب تمہیں قتال کی اجازت ہے کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، لہذا اب قتال کرو۔ پہلے حکم مکہ کے اندر جب ظلم و ستم تھا تو روک دیا گیا، جب امن اور سکون میں آئے تو حکم دیا گیا قتال کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک آدمی پر مصائب ہوں، ایک آدمی پر مشکلات ہوں، اس کے جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب اسی آدمی پر آسانی ہو، راحت ہو تو اس کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ مکہ کے اندر مصائب تھے، جذبات تھے کہ ہمیں حکم دیا جائے، مدینہ کے اندر راحت تھی، امن تھا، حکم دیا قتال کیجو۔ تو اب مسلمان یہ چاہنے لگے کہ ابھی کیوں حکم دے دیا گیا، ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی تو ہم سکون میں ہیں، چلو کچھ دن بعد حکم دے دیا جاتا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے مہلت دے دی جاتی، لیکن جلدی حکم دے دیا گیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جلدی حکم اس لیے دیا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے اور دنیا کے اندر آپ نے بہت تھوڑا رہنا ہے، اس لیے آخرت کی فکر کر لو، والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ تو یہاں حکم دے دیا گیا، اور وہاں مکہ کے اندر حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ مکہ کے اندر حکم تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انقلابی قدم اٹھانے کے لیے پہلے تربیت مقصود ہوتی ہے، جو مقصودی بات تھی، حکم دینے کی جو منشا تھی وہ یہ تھی کہ ایک انقلابی قدم اٹھانے کے لیے پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے بغیر انقلابی قدم اٹھایا جائے تو وہ قدم انسان کا اس کو مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس کی ایک عام مثال لے لیں، ایک آدمی نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس کو پہلے دن ہی فرنٹ سیٹ پر، ڈرائیور سیٹ پر نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ اس کو پہلے تربیت دی جاتی ہے، سکھلایا جاتا ہے کہ آپ نے یوں گاڑی سٹارٹ کرنی ہے، یہاں سے آپ نے موو کرنا ہے، یہ آپ کا گیئر ہے، یہ آپ کا اسٹیئرنگ ہے، یہ آپ کی بریک ہے، یہ آپ کا کلچ ہے، اور یہاں سے آپ نے گاڑی کو دیکھنا ہے، یہ سامنے میرر شیشے لگے ہوئے ہیں، ان میں دیکھ کر آپ نے گاڑی کو ادھر ادھر موو کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلے سکھائی جاتی ہیں، تربیت دی جاتی ہے، پھر اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی چلائے گا یا کسی اور جگہ میں جا کر داخل کر دے گا، کہیں نقصان نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے لکڑی کا کام کرنا ہے تو پہلے اس کو استاد کے پاس جانا پڑے گا، تربیت دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دن اسے کہا جائے گا کہ آپ بیڈ بنا دو، آپ صوفہ بنا دو، آپ ٹیبل بنا دو، آپ اسٹینڈ بنا دو، آپ کوئی چیز بنا دو، تو پہلے دن ہی اسے یہ حکم نہیں دیا جاتا۔ تو مسلمان جب انہوں نے قتال کی اجازت مانگی تو ان کی تربیت مکمل نہیں تھی، تو اس وقت دو پہلو اختیار کیے گئے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
पहले तरबियत ये है कि नमाज कायम करो, दूसरे नंबर पर ज़कात अदा करो। नमाज क्यों कायम करो? नमाज इसलिए कायम करो कि नमाज ये अल्लाह ताला का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से इनाम है और तुम्हारी इसमें मेराज है। तुम नमाज की हालत में अपने मालिक के करीब हो जाओगे, सजदे की हालत में तुम्हें कुर्ब नसीब होगा और मालिक से ताल्लुक मजबूत होगा। जब ताल्लुक मजबूत होगा तो उसके हुक्म पर अमल करना आसान होगा। तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हो, तुम्हारे दिन में एक अहम काम लगाया जा रहा है कि जब तुम इस अहम काम में पड़ोगे तो बहुत सारी उम्मत आपके माताहत आएगी और फिर उन तक उस मालिक के ताल्लुक की वजह से जब ताल्लुक मजबूत होगा तो उसके अहकाम पहुंचाने आसान हो जाएंगे। इसलिए इल्ला कलीला, अपने ज़ात के खिलाफ जिहाद करो, रात के तन्हाइयों में खड़े होकर अपने रब के सामने गुफ्तगू किया करो, अपने रब से बातें किया करो, रात का क़ियाम किया करो। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसको अपना कारसाज बना लो। तो ये सारे तरबीती मराहिल हैं। इन तरबीती मराहिल का मकसद क्या है कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए और ये कीमती मराहिल से गुजारा गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, इसका हुक्म दिया गया। मक्का के अंदर इजमाली तौर पर हुक्म था कि अपने माल में से कुछ न कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, लेकिन जब मदीना तय्यबा है तो वहाँ बाकायदा तौर पर निसाब बदलाया गया कि आपने फलां चीज़ से इतनी ज़कात अदा करनी है, फलां चीज़ से इतना निसाब है, उस पर इतनी ज़कात अदा करनी है। मदीना के अंदर बाकायदा तौर पर निसाब दिया गया। तो ज़कात देने का मकसद क्या था कि तुम्हारे अंदर इंसानी हमदर्दी पैदा हो, क्योंकि एक इनकलाबी कदम उठा रहे हो। इस इनकलाबी कदम में ताल्लुक माल्ला और इंसानी हमदर्दी ज़रूरी है। यही वजह है कि मुसलमान जिस इलाके को फतह करते थे, सहाबा इकराम जिस इलाके को फतह करते थे, आले इस्लाम जिस इलाके को फतह करते थे, तो वहाँ इनकलाबी कदम उठाने के साथ अल्लाह का हुक्म नाफिज करते थे। और दूसरे नंबर पर गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ, मोहताजों के साथ, मुफलिसों के साथ, हत्ता के कमज़ोर लोगों के साथ मुकम्मल रियायत करते थे। यही वजह है कि हुक्म दिया गया कि जब तुम किसी जगह पर उतरो, वहाँ के बूढ़ों को नहीं मारना, वहाँ की औरतों को नहीं मारना, वहाँ कमज़ोर बच्चों को नहीं मारना। हाँ, जो तुम्हारे मुकाबले में सामने आकर खड़े हो जाएं, उन पर फी सबीलिल्लाह ज़र्ब कारी लगानी है, ये हुक्म दिया गया। तो इसलिए ये तरबियती मराहिल पहले थे। मक्का के अंदर तरबियती मराहिल मुकम्मल हुए, तरबियत मुकम्मल हो गई, नमाज कायम करने का हुक्म, ज़कात को अमली जामा पहना दिया गया, ज़कात भी देने लग गए, नमाज भी कायम करने लग गए और फिर इतने मजबूत हो गए कि अल्लाह के दीन के लिए घर बार छोड़ दिया, हिजरत कर दी, आइज़ो अकारब छोड़ दिए, प्रॉपर्टियाँ छोड़ दी, अपनी जायदादें छोड़ दी, अपना बैलेंस छोड़ दिया, जो कुछ रिश्तेदार थे सबको छोड़ दिया, एक अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मक्का जैसा मुकद्दस शहर छोड़कर मदीना तय्यबा तशरीफ लाए। तो जब वहाँ पहुँचे, अब तरबीती मराहिल से गुजर चुके थे। गुजरने के बाद अब हुक्म दिया गया कि अब भाई नहीं बैठना, अब चलो, अब अपने इनकलाबी कदम उठाओ। तो अब यही फर्क है मुसलमान और गैर मुस्लिम फौजों के अंदर। गैर मुस्लिमों ने अपनी फौज को तरबियत देने के लिए ये उसूल नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि ईमान ही नहीं है। ये उसूल कहाँ अपनाते, नमाज कहाँ अपनाते, ज़कात कहाँ अपनाते, बुनियादी ईमान ही नहीं है। तो मुसलमान पहले ईमान लाता है, फिर नमाज है, फिर ज़कात है। यहाँ से तरबियती मराहिल पूरे हुए और फिर गैर मुस्लिमों ने अपनी फौजों को तरबियत देने के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या तरबियती इदारे बना दिए। लेकिन नतीजा क्या होता है, जहाँ जाते हैं जुल्म सितम के बाजार गिरम करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हर तरह की बदमाशी नजर आती है। यही फर्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर। अब जब मदीना में मुसलमान पहुंचे, राहत महसूस की, कुफार के जुल्म सितम से बचत महसूस हुई, आराम महसूस करने लगे। तो हुक्म दिया गया, फरमाया कि अब तुम किताल करो, अब लड़ाई करो, अब बैठना नहीं है, अब उम्मत की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी गई है। तो कुरान हकीम की इस आयत के अंदर यही बयान फरमाया गया, अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम, क्या आपने नहीं देखा, देखने से मुराद रुयत इल्मी है, आपको मालूम नहीं है, क़ील लहुम कुफ़ू अयदियकुम, कहा गया इनको अपने हाथों को रोको मक्का के अंदर, व अक़ीमुस सलाह, नमाज कायम करो, ताल्लुक माल्ला मजबूत होगा, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा के तुम पर तुम्हारे दिल के अंदर मसाकीन और मोहताजों के लिए हमदर्दी का दायरा पैदा हो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फिर वहाँ से मदीना आए, उन पर क़िताल फर्ज किया गया। तो मैं इदा फरीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास, तो
एक गिरोह उनमें से लोगों से डरने लगा, तो खशियतिल्लाह जैसे अल्लाह से डरना चाहिए था, और अशद्द खशिया या और ज्यादा डरने लग गए, क्योंकि अल्लाह से डरने का मतलब अक्ली है और लोगों से डर तभी है, और तभी डर अक्ली डर पर गालिब आता है, अक्ली डर पर तभी डर गालिब आ जाता है। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह से जो बंदा डरता है, अल्लाह ताला से ये तो तवक्को है कि अल्लाह जुल्म नहीं करेगा, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। लेकिन बंदों से जो डर है उनका क्या एतबार कि किस जगह उनका मिजाज बदल जाए और जुल्म पर उतर आए। इसलिए फरमाया कि अल्लाह से भी ज्यादा लोगों से डरने लग गए। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, कहने लगे हमारे परवरदिगार तूने हम पर क्यों क़िताल फर्ज कर दिया। क्यों का मतलब ये नहीं है कि इनकार कर रहे थे, बाज लोग इसी आयत को लेकर सहाबा इकराम पर तनकीद कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि असल मसला ये नहीं है, जुबान से नहीं कहा बल्कि दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ, और अल्लाह के यहाँ जुबान से कही हुई बात और दिल की बात बराबर है। कुल्लु सिर्रन लहू अलानिया, हर छुपी हुई चीज उसके लिए जाहिर है, हर छुपी हुई बात वो सुन रहा है, वो अल्लामुल गुयूब है, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। उनके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके ख्याल को बयान फरमा दिया। कुल मताउ दुनिया कलील, फरमाया मेरे महबूब आप फरमा दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है, इस दुनिया पर राहत बहुत कम है। फरमाया वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। वला तुज़लमूना फदीला, और तुम पर एक धागे बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। लिहाजा तुम सुस्ती और कहली न दिखाओ और किताल के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत सही तौर पर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए।